सिंपल चीज़ है जो आज हम कर रहे हैं चेकोलेट के थ्रू। एजुकेशन इज़ एम्पावरमेंट, क्योंकि अंधेरे में जब आपका दिमाग है किसी चीज़ में, आपकी बत्ती नहीं जली है दिमाग की, तो आपको वो चीज़ आपको नहीं, पहले नहीं पता है और फिर सडनली पता है वो बात। जब आपको वो बात पता चल जाएगी, जैसे ये इतना सुंदर और स्पष्ट वीडियो था सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का, QR कोड है इसमें, ये फैलाया जाएगा। ये आज का जो इवेंट है इसका मकसद ही ये है। और आई थिंक थ्रू एजुकेटिंग पीपल, एक एक इंसान भी एक एक इंसान को बता दे, और आप लोग तो पत्रकार हैं, आप लोग इसका जितना ज़्यादा, बिकॉज ये कोई स्कैंडलस गॉसिपी हाई क्लिक बेटी फैक्टर नहीं है कि जहाँ पे लोग इस बारे में बहुत बात करेंगे, बट बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक समवेयर एज अ सोसाइटी, women's health, mental, physical empowerment through education, through practical education, not कि ऊंची ऊंची आप फिलोसफी बांध रहे हो और फिर वही बात हो गई कि ये तो देवी है और इनको तो कुछ नहीं हो सकता। So not like that, but in a very practical way, जैसे कि ये वीडियो था, और ऐसी चीज़ों के थ्रू अगर ये क्लैरिटी आ जाए कि दिस इज़ वेरी मच पॉसिबल, इतनी प्रतिशत महिलाओं को ये होता है। आज मैं एजुकेटेड हूँ, यहाँ सबके साथ बैठ के मैं एजुकेट हुई हूँ यहाँ पे आज कि ब्रेस्ट कैंसर इज द नंबर 1 किलर, देन नेक्स्ट इज सर्वाइकल कैंसर। मुझे आइडिया था, मुझे लग रहा था सर्वाइकल है, बट आई फाउंड आउट टुडे कि ब्रेस्ट कैंसर है, एंड दैट मेक्स इट इवन मोर इम्पॉर्टेंट दैट वी आर ऑन दिस स्टेज, बिकॉज इट इज द नंबर 1 issue. So we have to address it through social media, through talking to people, through using whatever fora there are for us to talk, and जहाँ पे भी हम इस बारे में कुछ बात कर सकें, फंड कर सकें, कुछ खुद जाके अपना टाइम और फोकस और एनर्जी और अटेंशन उसको दे सकें, तो जो भी पॉसिबिलिटी होगी उस पे ज़रूर मैं अवश्य काम करूँगी। Very what you call that, chocolatey. So one is this particular thing, I don't take the credit. Apollo is very lucky to have some phenomenal team members who are young, who think out of the box and really want to make a difference. As an organization, we really encourage creativity and innovation, and the voices of our people, of our team members are heard. So I must give all of them credit for coming up with this idea of Checolate. To me, it was just the time lost. You know, you lose time by not detecting early. You lose time by not giving people the awareness that they can actually find something and get better. We lose time, economic status, because once you detect disease late, then you spend a lot of money, just having to take care of it. So all this was weighing on my mind, and when we said let's create something for awareness, but let's just make it positive, let's put a smile on people's face. The team came up with the Checolate, and I think this is a property which we will develop. And as we speak today, we're doing it in multiple cities. We're doing it in Bangalore and Delhi and many other locations, because we want more and more people to become aware. And thank you for what you said about the name, and I will convey it to all the team members. इसे जो जनरल रिस्क फैक्टर है, जनरल रिस्क कम हो सकता है, लेकिन अगर कोई हेरिडिटरी कैंसर है, या जैसे मैडम ने कहा कि एज बढ़ना वगैरह, उसको नहीं रोक सकते हैं, बट डेफिनेटली गुड लाइफस्टाइल कैन हेल्प, जैसे कि टोबैको, अल्कोहल अवॉइड करना, BMI हेल्दी लेवल्स में रखना, वजन कंट्रोल करना, एक्सरसाइज करना, ये हेल्प कर सकता है। बट जैसे कोई हेरिडिटरी रिस्क है तो उसको डेफिनेटली देखना पड़ेगा, और उस हिसाब से जो उसके एनहांस्ड एक्स्ट्रा टेस्टिंग है वो सब करना ज़रूरी होगा। वो केवल लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से नहीं हो पाएगा। So rural, I will answer that. So rural, also we are organizing some
we have had bus camps also. We are doing mammography camps there in a lot of rural. We have a bus set up now. So those mammos are taken, we send a technician with the bus, they take the mammos, they come to us for reporting, anything is picked up, we follow up on that. So Apollo is doing that as well. And we have self-awareness also we are creating. 10 years ago, we have data for 10 years in my father's village, which is very rural Andhra Pradesh. We all come from a very small village in Andhra. So we started what is called the Total Health Program. And in that we found that the women were really not empowered. We also found that there was a level of alcoholism which was very high, which was of course among the males. And so one of the things which we've done consistently for 10 years and which has data, it's data driven, is screen the women for breast and cervical cancer. So the incidence of breast and cervical cancer, which is in the stage which is very hard to treat, has come down because we're picking it up early. So that has been done, and it's a very successful program. So much so, we worked with McKinsey Health Institute, and they have created a playbook on how you can screen rural women with the buses, with the camps, using digital technology, using smartphones, to try and give them the awareness and actually teach them to screen themselves. And we are hoping to roll this out into multiple rural areas. We have 6 lakh villages in India. So even if we can do 60,000 villages and make a difference, I think it's useful. But what is interesting is, because this model has worked so well and we have 10 years data, Harvard has done a case study on it. And because of the case study, African villages are adopting it. So, we're trying, it's coming together. The universe is really working to help the women in different formats, but right now we are using technology, we're using awareness, which is talking to them. We're doing multiple screening programs, not only here, but sometimes in remote locations in Himachal, up in the mountains, using telemedicine. So I think technology today is playing a large part in awareness and in screening. मेरा सबसे पहले ये संदेश है कि कोई भी स्त्री को फर्स्ट अपना ब्रेस्ट कैसा है, अगर आपको आपके नॉर्मल ब्रेस्ट के बारे में पता नहीं है, तो उस ब्रेस्ट में अगर कोई खराबी आई या गांठ आई, उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। और एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना कि कैंसर वाली जो गांठ है या खराब जो गांठ है वो दर्द नहीं देती। और मेनी टाइम्स लेडीज़ क्या करती है, उनको गांठ हाथ में लगता है लेकिन वो समझती है कि अरे दर्द तो नहीं हो रहा है तो हम डॉक्टर के पास क्यों जाएं। यही बुरी बात होती है कि न गांठ आना, वो कैंसर का गांठ हो या सादी गांठ हो, ये हमें समझना ही है। स्तन में गांठ आई कि डॉक्टर के पास जाना है, उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसकी सही जांच करानी है। और अपने स्तन को समझना बुरी बात नहीं है। अगर हम अपने स्तन को नहीं समझेंगे, स्तन में होने वाली गठान को भी नहीं समझ पाएंगे। मैडम, ब्रेस्ट कैंसर कोई भी कैंसर के 4 स्टेजेस रहते हैं। ये बेसिकली किताबी नॉलेज है कि ये है 4 स्टेजेस ही है। तो ब्रेस्ट कैंसर में अर्ली स्टेज हम स्टेज 1, स्टेज 2 को माना जाता है, और सबसे बेस्ट रहेगा कि अगर हम स्टेज 1 में सब कैंसर डिटेक्ट कर सके, या कि स्टेज 1 के भी पहले एक स्टेज रहता है, उसको बोलते हैं कि प्री कैंसरस स्टेज। और वो प्री कैंसरस स्टेज ये स्क्रीनिंग से ही डिटेक्ट हो सकता है। तो इन जनरल 4 स्टेजेस होते हैं, और अर्ली स्टेज माना जाता है स्टेज 1 और स्टेज 2। और ये सब कार्यक्रम का और ये सब अवेयरनेस के प्रोग्राम का यही उद्देश्य है कि हम स्टेज 1 में ही कैंसर डिटेक्ट करें, क्योंकि अर्ली स्टेज में कैंसर डिटेक्ट होगा तो ट्रीटमेंट इंटरवेंशन जो रहता है वो कम रहता है, पेशेंट को नुकसान कम होता है और ज़िंदगी भी ज़्यादा बढ़ती है। मॅडम, हमारी बहन बेटिया जो है शर्मा विचारला तो खूप प्रॅक्टिकल आहे। डेफिनेटली अडचणी येतात जेव्हा पेशंट काउन्सिलिंगसाठी येतात, कारण आपल्याकडे एक कॉमन टेंडन्सी आहे, हा मलाच का, मला कॅन्सर होऊ शकत नाही, हे एक मेंटॅलिटी असते की आपल्याला तर कॅन्सर होणार नाही। तर त्यामुळे ते कन्व्हिन्स करायला थोडं डिफिकल्ट जातं।
पण डेफिनेटली हे अडचणीपेक्षा वी सी इट ॲज अन अपॉर्च्युनिटी ॲज वेल. कारण जेव्हा पेशंट येतो वी कॅन एज्युकेट देम रिगार्डिंग द ब्रेस्ट सेल्फ एक्झामिनेशन. त्यांच्या घरात कोणी पेरेंट्स असतील, फिमेल्स असतील, बहिणी वगैरे असतील, तर अशा वेळी इट्स अन अपॉर्च्युनिटी की आम्ही त्यांना सांगू शकतो की ब्रेस्ट सेल्फ एक्झामिनेशन कसं करायचं. प्लस आता हे जे आपलं इनिशिएटिव्ह आहे चॉकोलेटसारखं, जेव्हा डॉक्टर सांगतो तेव्हा पेशंट थोडासा अँशियस होतो की अरे कॅन्सरचा डॉक्टर आपल्याला सांगतोय म्हणजे आपल्याला कॅन्सर होण्याची भीती आहे का. पण जेव्हा ह्या माध्यमातून किंवा तुमच्या प्रेस माध्यमातून त्यांना ही माहिती मिळते तर ते मोर रिलॅक्स्ड वेने दे कॅन फॉलो दॅट. पहले भी बोला था फ्यू आर मॉडिफाइबल और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स. तो कुछ आप जो आप बता रहे हैं उसमें से कुछ मॉडिफाइबल है क्योंकि हम अगर कम करते हैं तो हम ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम करते हैं, जैसे कि मद्यपान करना या फिर स्मोकिंग करना, ये चीज़ों से ये कम हो जाता है. बट टाइट कपड़े पहनना या परफ्यूम मारना ये सब मिथ्स है. इट इज़ नॉट प्रूवन इट कि ये चीज़ों की वजह से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है. जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो अच्छे से डिफाइंड रिस्क फैक्टर्स है, जैसे कि अल्कोहल है वो इट विल इंक्रीज द रिस्क. जैसे हाई फाइबर डाइट है या प्रॉपर एक्सरसाइज है या वेट कंट्रोल है, ये चीज़ें हमारी रिस्क कम कर देता है. ओके, थैंक यू सो मच मैम.